اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ کسی دوست نے سوال کیا کیا ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کیا ہم یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ مدد کر سکتے تھے مولا علی شیر خدا تو پھر کربلا میں مدد کرنے کیوں نہیں آئے؟ یہ تو کوئی جاہلانہ سوال ہے، ایسا سوال تو کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ 1,24,000 نبیوں میں سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ سوال یہی بات ہے یہ کریں کہ وہ اگر اللہ کے نبی تھے تو پھر اللہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، ان کا تعلق تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھا، تو ایسے سوال نہیں کیے جاتے، یہ جاہلیت کے سوال ہوتے ہیں۔ جاہل بندے ایسا سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ مدد کرنے کیوں نہیں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو خاص اللہ پاک کے ہی بندے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت جل شانہ کے جو دنیا میں انبیاء یا اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ یہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میرے بھائیوں ہم نے سمجھنا ہے کہ لفظ غیر اللہ کیا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں بار بار ہمیں وہ دوسری ٹولے والے لوگ یہ آیت سناتے ہیں، اور جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ جو آتے ہمیں آیتیں سنائی جاتی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم نے غیر اللہ دیکھنا ہے کہ غیر اللہ کون ہے۔ غیر اللہ کہتے ہیں اللہ کے دشمن کو، اللہ کی ضد کو، اللہ کے جو برابر لا کر رکھ دیا جائے خدا، جیسا مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر لات، عزا، حبل، منات، صنم وغیرہ یہ جو بت رکھے ہوئے تھے، حبل وغیرہ، اور یہ رکھے تھے خدا کے مقابلے پر بت۔ یہ لوگ خدا کی ضد اور خدا کے دشمنی میں یہ لوگ خدا کے برابر بتوں کو لے کر آتے تھے، یا کہتے تھے یہ خدا کے شریک ہے، یا کہتے تھے یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو غیر اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ غیر اللہ کو اب سمجھیے، غیر اللہ اللہ کے دشمنوں کو کہا گیا ہے، یہ غیر اللہ ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ سمجھ بوجھ کے گل ذرا سوچو تو سمجھو، کیا ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہیں؟ کوئی مجھے بتا دے رسول اللہ غیر اللہ ہیں؟ کسی کی ہے ہمت یہ رسول اللہ کو غیر اللہ کہے؟ یا مولا علی غیر اللہ تھے؟ توبہ معاذ اللہ، وہ اللہ کے دشمن تھے؟ کیا نبی پاک اللہ کے شریک تھے؟ کیا نبی پاک اللہ کے بیٹے تھے؟ معاذ اللہ۔ کیا غوث اعظم؟ ارے میرے بھائیوں غیر اللہ تو میں اور آپ بھی نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شریک یا اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ کے کوئی ہم ایسی چیز نہیں ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کو پہلے سمجھیں، جو اللہ کے سوا بنائے جائیں معبود، جو اللہ کے سوا بنائے جائیں شریک۔ اب نبیوں سے مدد مانگنا یا مولا علی سے مدد مانگنا یا غوث اعظم سے مدد مانگنا تو ان کو معبود اور شریک سمجھ کے نہیں، یہ محمد رسول اللہ غیر اللہ نہیں اہل اللہ ہیں، محمد رسول اللہ غیر اللہ نہیں یار اللہ ہیں، محمد رسول اللہ غیر اللہ نہیں حزب اللہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ غیر اللہ نہیں نور اللہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ غیر اللہ نہیں محبوب اللہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ غیر اللہ نہیں کلیم اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، نور اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، صفی اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، بلکہ نور میں نور اللہ ہیں۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا امام المتقین ہیں، حیدر قرار ہیں، غیر فرار ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، شیر ببر شیر خدا و شیر رسول اللہ ہیں۔ حضرت علی فاتحہ بدر و حنین ہیں، جن کی ایک ضرب دو جہان کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ علی جن کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اے لوگو جس جس کا میں آقا ہوں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو علی مولا ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ تو غوث اعظم جو تمام جہان کے اولیاء اللہ کے سردار ہیں، جن کو اللہ پاک نے
पूरी कायनात के वलियों का सरदार बनाया। मेरे भाइयों वो सब यारुल्लाह और हिजबुल्लाह, बस ये दो लफ्जों का जरा इस पर गौर कर लें मेरे भाइयों के गैर अल्लाह कौन है, अहलुल्लाह कौन है, गैरुल्लाह कौन है, यारुल्लाह कौन है। अगर हम रसूल अल्लाह से मदद मांगते हैं तो रसूल अल्लाह अहलुल्लाह है, नूरुल्लाह है, उनकी मदद अल्लाह की मदद ही है। उनसे कोई मदद मांगे तो वो अल्लाह ही की मदद से मदद कर सकते हैं। अगर कोई या अली मदद कहे तो अली वलीउल्लाह है, वसीय रसूल अल्लाह है, तो मौला अली अहलुल्लाह है, हिजबुल्लाह है, वलीउल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं। तो अल्लाह के दोस्त की मदद भी अल्लाह ही की मदद गिनी जाती है। ऐसे गौसे आजम, दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद और दीगर औलिया अल्लाह। फिर ये आयत बार बार सुनाई जाती है, कहते जी हम नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये आप सब ने ये देखें जी, अल्लाह कुरान में कहता है, हम पहले अल्लाह से इकरार कर लेते हैं तुझ ही तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो जब तुझ ही से मदद मांगते हैं तो इसमें तो फिर मदद सारी अल्लाह ही की है। मेरे भाइयों जरा लफ्ज पर गौर करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तुझ ही से का ये मतलब है या अल्लाह अगर हम तेरे महबूब से भी मदद मांगे तो तुझ ही से मदद है, हम मौला अली से भी मदद मांगे तो ये भी तुझ ही से मदद है, हम गौसे आजम या अपने मुर्शद से भी मदद करें तलब करें तो ये भी तुझ ही से मदद है। तुझ ही से का मतलब ये है कि ये सारी मददें अगर जहान में है तो अल्लाह सारी तुझ ही से है, तेरी निस्बत से ही है, तेरी ताकत से ही है, तेरी अता कर दी कुव्वत से ही तेरी मदद है सारी। तो मेरे भाइयों ये आयत तो इशारा दे रही है कि अगर आपका मुर्शद मदद कर दे, रसूल अल्लाह मदद फरमा दे, मुश्किल कुशाई कर दे, अगर इब्ने कितादा की आंख निकल जाए तो रसूल अल्लाह अपना लुआब दहन थुक मुबारक लगाकर आंख को फिट कर दें। कहे इब्ने कितादा देख, इब्ने कितादा कहते आका इतना तो पहले नजर नहीं आता था जितना अब नजर आ रहा है। और इस हदीस में यह भी आता है, मेरे नबी ने इब्ने कितादा से फरमाया था आंख लगाने से पहले, इब्ने कितादा बुखारी की हदीस है, जब वो जंग लड़ रहे थे तो आंख बाहर आ गई, डेला बाहर आ गया, तो मेरे नबी की बारगाह में गए। साहबा का कीदा था अल्लाह का मुश्किल कुशा नबी बैठा है, इससे अगर मदद ली जाए तो ये अल्लाह ही की मदद है। ये गैर अल्लाह का रोला 1400 साल के बाद मुल्ला के ज़हन में पड़ा है। साहबा जो तहीद रसूल अल्लाह से सीखते थे उनके ज़हन में ये रोला था ही नहीं। उनको कोई मुश्किल आती थी मुश्किल कुशा नबी की बारगाह में जाते थे, उनको कोई मुसीबत आती थी हाजत रवा अली के दरवाजे पर जाते थे, क्योंकि नबी ने फरमा दिया था अना मदीनातुल इल्म व अली जुन बाबूहा, मैं इल्म की कायनात हूं, अली उसका दरवाजा है। अब दरवाजे पर सवाली बन के जाया जाता है, चौधरी बन के नहीं जाया जाता। कुछ लेना हो दरवाजे पर जाकर सवाल करना पड़ता है। मेरे नबी ने सवाली बनाया सबको अली के दर का और मोहम्मद के दर का, क्योंकि इनके दर हकीकत में अल्लाह ही के दर हैं। ये कौन सी अपनी खुदाई से जाकर बैठे थे अपनी जिंदगी में, इन्होंने अल्लाह का ही प्रचार किया, तौहीद का ही प्रचार किया और अल्लाह पाक ने इनकी रिसालत और विलायत का प्रचार किया। तो मेरे भाइयों इब्ने कितादा मेरे नबी फरमाते हैं, इब्ने कितादा अल्लाहु अकबर, अब कितादा नु तो नहीं ना पता, उन्हें आज तक कोई मौलवी नहीं सी सुनिया कितादा ने जी, आज तक कोई मौलवी यूट्यूब ही सुन लेंदा फिर शायद इब्ने कितादा दे ज़हन च आ जाती नहीं जी अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह से आंख लगवानी है, आप थुक ना लगाना, आप लुआबेदा ना लगाना, मैंने अल्लाह से थुक लगवाना है। नहीं, ऐसा इब्ने कितादा शुक्र है उस जमाने में आज का खुश्क मुल्ला मौजूद नहीं था, आज शिरक के फतवे लगाने वाला मुल्ला मौजूद नहीं था। आज तो कोई दरबार पे चला जाए जी शिरक हो गया, झंडा लगा दिया शिरक हो गया, चादर चढ़ा दी शिरक हो गया, ढोल बजाया शिरक हो गया, आपने या रसूलुल्लाह का शिरक हो गया। अरे मेरे भाइयों पहले शिरक की सिफात तो समझे, शिरक के जो सिफात है, शिरक के जो शर्तें हैं वो तो समझे। शिरक कहते हैं किसको है? ढोल का, दरबार का, चादर का, अगरबत्ती का और मज़ारात पर जाने का तो तौहीद के साथ शिरक के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। शिरक का अलहदा मामला है और ये मज़ारात पर हाजिरी देना, चादर चढ़ाना कि ये अलहदा मामला है।
تو میرے بھائیوں پہلے شرک کو سمجھیں، پھر ابن قتادہ والی حدیث پوری ہو جائے، پھر میں کہہ دوں شکر ہے ابن قتادہ نے کہ مولوی نہیں سنا تھا، ابن قتادہ نے رسول اللہ سے توحید سنی تھی، ابن قتادہ نے دین والے سے دین لیا تھا، ابن قتادہ نے توحید والے سے توحید سیکھی تھی۔ آج کے ملا کو تو توحید کا خطرہ پڑا رہتا ہے نا، اور جو تسی پیروں کے پاس جاتے ہو توحید کو خطرہ ہو جاتا ہے، ہاتھ چومتے ہو توحید کو خطرہ ہو جاتا ہے، پاؤں چومتے ہو توحید کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ میری امت اب مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں رہا، مجھے اب اپنے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں رہا۔ جب محمد عربی کو خوف نہیں ہے شرک کا، آج کے ملا کو توحید میں شرک کا کیا فرق پڑنا لگ گیا؟ ہاں حضور پاک نے فرمایا میری امت دنیا دار ہو جائے گی، شرک نہیں کرے گی۔ امت محمد، یہ بخاری کی حدیث ہے، اپنی من پسند حدیث نہ منو، یہ حدیث بھی مانو، مجھے اپنے بعد شرک کا کوئی خوف نہیں۔ اب امت محمد مصطفیٰ شرک کر ہی نہیں سکتی، یہ رسول پاک نے فرما دیا۔ اب نبی کی بات کو جھوٹا نہ کرے، مزارات پر جانا شرک نہیں ہے، ہاں اگر کوئی وہاں پر بدعات کرتا ہے، غلط خرافات کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو شرک کے زمرے میں نہ لاؤ۔ شرک کہتے ہیں، پہلے سن لے، میں ابن قتادہ کی بات سے پہلے آپ کو بتا دوں، شرک کہتے ہیں جو بندہ کسی کو اللہ مانے، اللہ کی صفات میں شریک جانے، افعال میں، یا اللہ کی بیٹی یا بیٹا جانے۔ اب یہ تین کام جو بندہ کرتا ہے، کسی کو اللہ سمجھتا ہو، کسی شخصیت کو اللہ کا شریک سمجھتا ہو، کسی شخصیت کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھتا ہو، پھر شرک ہے۔ اب ہمارا کوئی سنی بابا فرید جائے، سلطان باہو جائے، داتا صاحب جائے، جاہل ہو، پڑھا لکھا بھی نہ ہو، کوئی کچھ نہ پڑھا ہو، صرف اس سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہو اپنے سائڈ پر لے جا کر پوچھنا ہے، اس سے صرف یہ پوچھنا ہے، آپ نے یہ پوچھ لیں کوئی بات نہیں، اس سے پوچھنا ہے آپ نے کیا اے میرے بھائی ذرا بتا داتا علی حجویری اللہ ہے؟ وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ کہے گا نہیں، اللہ نہیں ہے۔ یہ میں جاہل کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی کہے گا یہ بابا فرید اللہ نہیں ہے۔ اچھا اس کو یہ پوچھنا ہے کیا یہ اللہ کی ضد ہے، اللہ کے برابر ہے، اللہ کا شریک ہے؟ وہ کہے گا نہیں یار، اللہ کا شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ضد ہے، نہ اللہ کا دشمن ہے۔ اچھا چل یہ بتا بابا فرید یا داتا صاحب اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا ابو ہے؟ وہ کہے گا جان دے تو پاگل ہو گیا، انہیں تجھے پاگل کہنا ہے، تو جو لوگوں کو شرک کے فتوے لگاتا ہے نا، اس نے تجھے پاگل کہنا، بے وقوفا، نہ تو یہ اللہ ہے، نہ یہ اللہ کا برابر ہے، نہ یہ اللہ کا پتر یا پیو ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یار اللہ دا ولی آ، اللہ دا پیارا وا، یہ اللہ دا محبوب بندہ، اسی دے دی بارگاہ چاہیے کہ اللہ ساڈی سن لوے دے صدقے، وہ یہ جواب دے گا۔ اور میرے بھائی کدی پلے پہ چنگے بندے نے تینوں دسے شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر بات کو شرک کا اس پر فتویٰ لگا دینا، یہ بھی شرک، وہ بھی چادر چڑھانا شرک، دربار پہ جانا شرک، کس نے کہہ دیا شرک ہے؟ تو میرے بھائیوں آئے ابن قتادہ جنہوں نے توحید والے پیغمبر سے توحید لی ہے اور بڑی سونی توحید سکھائی ہے، ابن قتادہ کہتے ہیں میں رسول کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ ایاک نعبد کی تفسیر وہ بہتر جانتے تھے، وایاک نستعین، اللہ ہی کی مدد ہے، آپ کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے، در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو نداجی آئی اور بے خبر، ارے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اب رسول اللہ تو وہ ہستی ہیں جو اسم اللہ ذات میں فنا ہے، جو اللہ کے اسم میں فنا حاصل کر کے بقا حاصل کر چکی ہے، بلکہ رسول اللہ تو اس میں ہو میں فنا ہو کر بقا حاصل کر چکے ہیں۔ کون فیکون کا مقام اللہ نے جس رسول کو عطا فرمایا۔ ارے اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا پھر لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ ارے محمد سے تو وفا کرنے والے کے بارے میں اللہ کہتا ہے بندے ہم تیرے ہو جائیں گے، پھر یہ جان چیز ہے کیا، پھر تو لوح و قلم بھی تیرے کر دیں گے، جا جس کی مرضی قسمت بدل دینا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اتنا بلند ہو جا۔ تو محمد مصطفیٰ تو وہ ہیں جو بلندیاں بانٹتے ہیں،
इब्ने क़तादा वो हैं जो सहाबी हैं, और सहाबी वो होता है जो तसर्रुफ़ दुनिया को अपने हाथ में रख कर बैठा हो, पूरी कायनात का तसर्रुफ उसके हाथ में हो, इसको सहाबी कहते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने सहाबियों को अदना तरीन दर्जा ये दिया था। याद रखें ये मेरी बात, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने अदना सहाबा को अदना तरीन दर्जा ये दिया था कि सहाबा के इख्तियार में पूरी कायनात का कंट्रोल दे दिया था, तसर्रुफ दे दिया था कि तुमने मोहम्मद की नौकरी की है, गुलामी की है, सहाबियत को कबूल किया है, मुझ पर ईमान लेकर आए हो। इब्ने क़तादा ने आंख हाथ पे रखी, आका मेरी आंख ठीक कर दें, अल्लाह गनी, आका मेरी आंख ठीक कर दें, मैं आंख लगवाने आया हूं। तो रसूल अल्लाह तो तौहीद जानते सी या तू जानता, या ये मौलवी जानता है जो तौहीद के कहता है मुझे फर्क पड़ेगा, इंज ना करो जी। रसूल अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था, इब्ने क़तादा जा, चला जा, मैं तेरी आंख नहीं जोड़ सकता, अल्लाह से कहूंगा अल्लाह जोड़ेगा। नहीं, पता है कि जो मेरे दर पर आ गया वो अल्लाह ही के दर पे आया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इब्ने क़तादा आंख लेनी है कि जन्नत लेनी है? आंख लेनी है कि जन्नत? कौन कहता जी पीए और नबी तो जन्नत भी नहीं दे सकता। और शर्म नहीं आती तेन जो बायसे तखलीक है कायनात नबी हो, जिसके सदके पूरी दुनिया बनी हो। जन्नत भी दुनिया में ही सारी कायनात में ही आती है ना, बल्कि यहाँ तक हदीस कुदसी हो, ए हबीब मैं कुछ भी पैदा ना करता, कुछ भी मैं जन्नत भी आ जाती है, बल्कि मैं अपना आप खुदा होना भी जाहिर ना करता। हदीस कुदसी में आता है, ए नबी अगर मैं आपको पैदा ना करता, तो वो नबी कहता है जन्नत लेनी है या अख लेनी। तो इब्ने क़तादा भी बड़ा आशिक रसूल साहबी सी, और बिल्कुल सही अकीदा सी, सुन्नी सही अकीदा, औलिया अल्लाह वाला, औलिया अल्लाह ने जिनका अकीदा बनाया हुआ है आज। तो इब्ने क़तादा कहते हैं, आका अख अपनी मर्जी ना लवान आया, जन्नत अपनी रहमत ना दे दियो। हजूर पाक मुस्कुरा पड़े, लुआब दहन लगाया, आंख को फिट कर दिया, फरमाया जा जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत भी दे दी। इधर लबे मुस्तफ़ा हिले, उधर कलम चलना शुरू हो गई कि इब्ने क़तादा जनती हुआ, इधर लुआब दहन लगा, आंख अपनी जगह पे फिट हुई। अरे तू नबी की मुश्किल कुशाई की बात करता है, नबी का तो लुआब दहन भी मुश्किल कुशा है, उसका तो थूक लगना भी मुश्किल कुशा है। इब्ने क़तादा कैसा नजर आ रहा है? आका इतना तो पहले नजर नहीं आता था जितना अब नजर आ रहा है। तो मेरे भाइयों, एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, लाखों ऐसे वाकयात हजूर पाक की जिंदगी से मिलते हैं कि नबी पाक ने सहाबा की मुश्किलात आसान की, अराबियों की मुश्किलात आसान की, सहाबियों की मुश्किलात को आसान किया, और इशारे किए अल्लाह ने सूरज मोड़ा, इशारे किए अल्लाह ने चांद तोड़ दिया, इशारा होता था कभी काबा बदल जाता था। ये तो रसूल की शान का हाल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कर सकते हैं तब भी और अब भी, तब भी और अब भी। उनके लिए मौत और जिंदगी बराबर हो चुकी है। ये कहना जी वो तो तब थे, अब तो वो फौत हो गए। और मेरे भाई, सूरज है, चांद है, सितारे जगमगा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, जमीन आसमान का निजाम चल रहा है। तो जब सब कुछ चल रहा है ना, तो याद रखो हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है ना, वो बिल्कुल आज भी वैसी की वैसी है। हजूर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हजूर ने बादज़ विसाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे। और ये हदीसों में मौजूद है, हाकिम ने रवायत किया और दीगर हदीसों में आया है। मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरे दुनिया के पर्दा कर जाने के बाद मेरे रोजे पर आया, वो ऐसे ही है जैसे मेरी जिंदगी में मुझे मिलने आया। ये हयात का बहुत बड़ा सबूत है रसूल पाक की जिंदगी का। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर शहीद नहीं मरता। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा ना कहो। तो मैनू ये दसो, फिर शहीद वड्डा के नबी वड्डा है? शहीद वड्डा के कमली वाला वड्डा है? कमली वाले दे सदके शहीद नू रुतबा मिलिया है ना। तो जब शहीद जिंदा है, जब नौकर जिंदा है, जब गुलाम जिंदा है, तो आका भी जिंदा है। हाँ, हमारी अकल से बालातर है। शहीद के बारे में आते हैं, इनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तो जब शहीद जिंदा है, तो शहीद का आका मोहम्मद मुस्तफ़ा भी जिंदा है। कायनात का निज़ाम चल रहा है तो समझो मोहम्मद जिंदा है। जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सेकंड के लिए गए थे, वो पलक झपकने से पहले जो मिराज करने गए थे ना, हदीसों में आता है हजूर के कदम जब उठे थे ना जमीन से दोनों,
अल्लाह ने जमीन की जान खींच ली थी, जमीन वहीं पे रुक गई जहां पे थी, जमीन की पूरी जान निकाल ली गई। हजूर पाक अर्श पर गए, 7 आसमान 7 जमीन लाहूत ला मका, हर चीज की, फिर खुदा का दीदार वका बका हुसैनी आउ अदना, खुदा की ज़ियारत के 18 साल गुजर गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा जमीन पर आए, जब कदम यकदा जमीन से टकराया फौरन निजाम उसी तरह कायनात का चलना शुरू हो गया। पता ये चला इस सूरत में जान आखा के जाने जहान आखा, ये पूरी कायनात की जान है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब कायनात से उठाया गया, कायनात की जान निकल गई। हजूर कहते हैं जब मैं वापस आया मेरा बिस्तरा गर्म था, पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी। पता चला कि फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पर तशरीफ लेकर गए, अल्लाह ने जमीन की रूह को निकाल दिया। अरे मेरे भाइयों, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा वफात पा जाएंगे ना, याद रखना ये कायनात भी तबाह हो जाएगी, ये कायनात भी खत्म हो जाएगी। अरे ये तो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ही तो चल रही है। तो मौला अली हो, गौस नबी पाक हो, मदद कर सकते हैं। मौला अली हो, अल्लाह की मदद से मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने इनको ये मुकाम, ये शान अता फरमाई है। और ग़ज़वा खैबर में नबी पाक ने नादे अली पढ़कर हजरत अली को मदद के लिए पुकारा है। हजरत अली मदद के लिए आए भी हैं। सलमान फारसी कहते हैं तब शेर खुदा का आपको नाम दिया गया कि आप शेर पर सवारी करके का रवायत में आता है, आप वहां पर तशरीफ लाए जहां से आपको शेर खुदा का खिताब हुआ। तो मेरे भाइयों, अली तब भी मदद कर, अब ये कोई बंदा कह दे जी जिंदा तो मदद कर सकते हैं, वफात के बाद वो मदद नहीं कर सकते थे, तो मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं अर्श मोहल्ला पर गया, जाने लगा तो मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, और जब मैं चौथे आसमान पर पहुंचा, 5वें पर हजरत मूसा मिले। जब मैं नमाजें लेकर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, कम करवाएं, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। अब हजरत मूसा तब जिंदा थे या फौत हो गए थे? हजरत मूसा को तो फौत हो 10,000 साल हो गए थे। तो 10,000 साल बाद भी मूसा मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद कर रहे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस मामले में मदद कर दी उन्होंने कि या रसूलुल्लाह मेरी उम्मत ने नमाज़ें नहीं पढ़नी, आपकी उम्मत ने नहीं पढ़ी थी, आपकी उम्मत में नहीं पढ़नी, लिहाजा कम करवाएं। तो ये तो बाद विसाल भी मदद साबित है। तो मूसा खुदा का खलीफा था, नबी था, तो जो उस जमाने का खलीफा और नबी था, तो अगर ये जिंदा भी और मुर्दा भी मदद वफात के बाद भी कर सकता है, तो नबी पाक भी दुनिया में खुदा के खलीफा हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत अली शेर खुदा भी जमीन पर खुदा की हुज्जत और खुदा के नायब और खुदा के खलीफा हैं। अगर नबी बाद विसाल 5वें आसमान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलकर मदद कर सकता है, तो मौला अली शेर खुदा भी खलीफा है, दो जहां हैं, खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, बल्कि कायनात में हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत है, तो वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। यही हाल गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का, कि अल्लाह पाक अपने औलिया अल्लाह को अपनी मदद अता फरमाता है। और हजारों वाक़यात ऐसे मौजूद हैं कि औलिया अल्लाह ने मदद की है, अल्लाह की मदद से उन्होंने लोगों की मुश्किल कुशाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये अकीदा है मेरे भाइयों, और खुसूसन हमारे जो मुरब्बी हैं हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं जो वलिये कामल तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता है, खुदा के इसम का तसव्वुर करता है, फिर अपना जिस्म इसम में फना करता है और इसमें ज़ात में बका हासिल कर लेता है, वो अकेली बका हासिल नहीं करता, बका के मैनी है अपने आप को फना करके अपने ऊपर खुदावंदे बारी ताला की बका, यानी अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह की मुश्किल कुशाई, अल्लाह की हाजत रवाई, अल्लाह का आलिमुल गैब का रंग, जिसको कुरान ने कहा सिबगातुल्लाह, अल्लाह का रंग उस वली पर चढ़ जाता है। वो अल्लाह के नूर से देखता, वो अल्लाह की आंख से देखता, वो अल्लाह के कान से सुनता, वो अल्लाह के हाथ से छूता, वो अल्लाह के पांव से चलता। अरे उसके देखने में अल्लाह, उसके सुनने में अल्लाह, उसके बोलने में अल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया जो बंदा अल्लाह का कुर्ब पाले, कुर्ब से मिसाल ये दी जैसे कतरा समंदर में मिल जाए। उलमा कहते हैं कतरा समंदर, यानी बंदा अल्लाह में फना हो जाए। फना
हो जाए फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। इतना मैं फनाइयत खुदाबंदी में चला जाऊं तो अल्लाह उसके बोलने में, हजूर पाक कहते हैं कि वो अल्लाह की जुबान अल्लाह उसकी बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है। तो फिर मदद किसकी हुई? वली की कि अल्लाह की? अल्लाह की। अगर बाबा फरीद मदद कर दे तो मदद किसी की? अल्लाह की। नाम उस वक्त बाबा फरीद का अल्लाह ने चमका दिया, क्योंकि यारी जो लगाई थी, फिर यार दा ना ही चमकाना सी, तेरा मेरा नहीं सी चमकाना। तू एवं घर बह के सड़ी जाता जो दाता साहब का ना किवें चल गया, बाबा फरीद का किवें चल गया, वो एवं ही चल गया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर ते मैं तेरा करांगा। उदों ही होना ही जो तू इनू मार के ओदा जिक्र करना है। तू ये जुबान अपनी जुबान चला चला के वलियां के उत्ते कुफर के फतवे लगाता है और उसकी करामात को झूठी साबित करता है और कहता है जी अल्लाह मुझसे ऐसे राजी हो जाए। इंज राजी नहीं होता। औलिया अल्लाह ने अपने आप को मारा है। अल्लाह सुल्तान बाहू की पहले बात सुन ले, वो कहते हैं जो बंदा जिस्म अल्लाह में फना हो जाता है, बका हासिल कर जाता है, फिर अल्लाह पाक उस पर मुश्किल कुशाई का दरवाजा खोल देता है। वो अल्लाह से जब कोई दुआ मांगने लगे ना, अल्लाह कहता मांगा ना कर यार, उन्हें इन्नी गूड़ी लग गई है, हुणे खजाने ही तेनू दे दिते ने, हुणे इन्नी गूड़ी यारी लग गई है, हुणे सारा मुश्किल कुशाई भी अपना इल्म भी तेनू दे दिता है। ओ यार तू मंगदा रहंदा है। लामा इकबाल यहाँ पर कहते हैं खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खिलवतों में किबरियाई, जमीन व आसमान अर्श व कुर्सी, अरे खुदी की ज़द में है सारी खुदाई। इसी के अंदर सारी खुदाई और इसी के अंदर सारी मुस्तफाई मौजूद है। तो मेरे भाइयों, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुरब्बी कहते हैं, फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह के इस्म में फना हो और उसके ऊपर अल्लाह के इस्म का रंग चढ़ जाए और वो इसमें बामुसम्मा हो जाए, अल्लाह इसको हर दो जहां का तसर्रुफ अता करता है। अल्लाह उस वली को जो अल्लाह के इस्म में ज़ात को अपने दिल पर नक्श करता है, किसी कामल मुर्शिद का मरीद होता है, फिर इसमें अल्लाह ज़ात करता है, अल्लाह ऐसे वली के लिए सातों आसमान सातों ज़मीन रोशन कर देता है। उनकी दुआएं मांगने से पहले अल्लाह मुस्तजाब के दरवाजे खोल देता है। वो किसी पर नजर कर दे, ये उनकी नजर नहीं है, और जी पीरा ने नजर की थी, जी पीरा ने नजर की थी, और पीरा की नजर नहीं हुई, तेरे ते हुई नहीं, ये तू तो बोलता है। वो अल्लाह की नजर है, जो अल्लाह की नजर जिनों के बारे में हदीसों में आता है, वो उनकी आंख अल्लाह कहता है मैं उनकी आंख बन जाता हूं। तो मेरे भाइयों, वो अल्लाह की नजर है। ये तो नजर है करम। लामा इकबाल ने कहा निगाहें मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये तो यकीन दा सौदा है जेड़ा आपा को है कोई नहीं। ਆਪਾਂ ਤੇ बस अपना चैनल चमकाना ते अपनी मशहूरी करनी है ते ਆਪਾਂ लोगों ਨੂੰ बेअदब ते गुस्ताख करना और अपने असलाफ ਨੂੰ बुरा कहना। ये तो तिरमिज़ी की हदीस है। नबी पाक ने कहा मेरी उम्मत पर लानत हो ऐसे लोगों पर जो अपने असलाफ को गालियां निकालेंगे, बुरा कहेंगे। ते आज वेखो दौर आ गया, आज हाँ सानू अपने बुजुर्ग भैड़े लगन लग गए जी। उन्होंने गल्लां और जिहड़ी गल दी समझ नहीं आती, समझो तसव्वुफ कुरान और हदीस की जान है। उन्होंने निकाला है उसका मगज निकाला है, उन्हें समझो, उसको अपने ऊपर वारद करो, फिर आपको उसकी समझ आएगी। औलिया अल्लाह बिल्कुल हक और सच कहते थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वली अल्लाह की मदद से देखते हैं, अल्लाह के नूर से मुरीदों की बात सुनते हैं, अल्लाह के हाथों से, उनके हाथ अल्लाह की ज़ात में फना हुए होते हैं, उनसे वो मदद करते हैं। अल्लाह का उनके पाँव अल्लाह के नूर से होते हैं, तो वो उनसे चलकर जहां मर्जी अपने मुरीदों की मदद के लिए चले जाते हैं। अगर वो मर भी जाए वली अल्लाह, तो वो फना किस में हुए थे भला? अल्लाह में। वो कतरा जो था उनका रूह का, वो कहाँ गया था भला? समंदर में। रूह गई थी रूह अल्लाह में। अगर वो जारी तौर पर मर भी गए ना, हमने उनको दफन कर दिया, जिस्म मरा है, रूह नहीं मरी। वो कतरा तो समुंदर में मिल गया हुआ है, जिहड़ा काम पैना सी वो पै गया। वो अल्लाह की जात में फना हो गए, वो अल्लाह की जात में रहने लग गए, वो अल्लाह की जात में चले गए। अब उनका मौत नहीं है। अब अगर कोई उनको या अली मदद कहे या हुसैन मदद कहे, उनकी रूह को फौरन खबर होती है। पता क्यों? उनकी रूह अल्लाह की रूह में चली गई। अल्लाह की रूह कहाँ नहीं है? हर जगह है। अल्लाह की रूह हर जगह है, हर जर्रे जर्रे में है। तो वली अपने आप को जब अल्लाह में मिला देता है ना, तो फिर वो कतरा कहलवाए, कतरा समंदर में चला जाए, फिर वो कतरा कहलवाएगा कि समंदर, फिर वो समंदर कहलाएगा।
तो ऐसे ही जब रूह अल्लाह में चली गई, वो अल्लाह का नूर कहलाएगा। अल्लाह का नूर हर जगह मौजूद है, अल्लाह का वली हर जगह आ जा सकता है। अल्लाह के वली के लिए दूर नजदीक, फिर बात मरने के बाद भी दूर नजदीक की ये बातें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के वली मरने के बाद भी नहीं मरता, क्योंकि उसकी रूह अल्लाह से मिल गई है, उसकी आत्मा परमात्मा में चली गई है, उसका कतरा यानी रूह समंदर में मिल चुका है, और वो अपने आप को खुदा की जात में लेकर बैठा है, जिसके बारे में खुदा फरमाता है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ऐ लोगों सुन लो, बेशक मैं अपने वलियों के साथ रहता हूं। अब साथ रहना, साथ जहां पे अल्लाह साथ रहने का कहता है ना, ये नहीं कि अल्लाह उन्होंने नाल बैठा, ये तो दुई हो जाती है। साथ रहने का मतलब है मैं उनमें रहता हूं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं उनके नफूस के अंदर रहता हूं। कुलूबल मोमिनीन अर्शल्लाहि ताला, मैं उनके दिलों में रहता हूं। तो अल्लाह फिर उनके साथ रहता, फिर वो नहीं रहते, अल्लाह रहता है। आज दरबारां नूं तू बंद करके विखा, तू कहंदा बाबा फरीद दरबार बंद कर दो, गौस पाक का दरबार, तू करके विखा ला, कोशिश कर ले, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ खत्म। और मेरे भाई 1400 साल हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उनको मोहरें लगाई हैं, और जिन्हों मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहर लावे ना, मेरे तेरे वर्गे बंदे ने कहना कुछ भी नहीं होना। इनके झंडे कल भी झूल रहे थे, इनके झंडे आज भी झूलने हैं, और इनके झंडे क़यामत तक झूलते रहेंगे। अहमद रजा खान बरेलवी इमाम आला हजरत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिटते रहेंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना रसूल खुदा का चर्चा मिट सका, ना अहले बैत औलिया अल्लाह का चर्चा मिट सकता है, कभी नहीं मिट सकता। दुश्मन नेस तो नबूद बल्कि जलील हो जाएगा, पर औलिया अल्लाह रहेंगे। याद रखें, आखिरी पैगाम मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह का एहतराम करें, औलिया अपने असलाफ को बुरा ना करें, अपना ईमान बर्बाद ना करें, एवं किसी के पीछे लग के अपना बेड़ा गर्क ना करें, अपनी मोमन वाली जुबान रखें। रसूल ने फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, मोमन वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मोमन महफूज है। ना लोकां ते कोई यहो जी बात फतवे लगाओ, पहले इसनू तो ठीक करो। हजरत ईसा बाइबल में फरमाते हैं, तू अपने भाई की आंख का तिनका देखता है, अपनी आंख का शहतीर क्यों नहीं सीधा करता। यानी अपनी अख च शहतीर है तो भरा दे अख का तिनका भी तेनू नजर आता है, पहले इसको सही कर। उठ फरीदा सुत्तिया, झाड़ू दे मसीद, तू रह गया सुत्ता, तेरी डांटे नाल प्रीत। तो मेरे भाई औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें। औलिया अल्लाह वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के नाम पर लगा दी हैं, वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। अल्लाह ने उन पर ऐसी करम नवाजियां कर दी, अल्लाह उन पर ऐसी रहमतें कर दी। आज अगर हम उनके लड़ लग जाएंगे तो अल्लाह हम पर भी रहमतें कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।